हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। At this juncture, we may examine the arbitration clause, which is enumerated in clause 16 of the tender as noted hereinbefore. From a plain reading of the arbitration clause, it is evident that for the purpose of appointing the sole arbitrator, the chief managing director of the respondent, who shall be the appointing authority, will send within 30 days of receipt of the notice of a panel of 3 names. It will also be evident from the said arbitration clause that the contractor shall on receipt of the names select any one of the persons to be appointed as a sole arbitrator and communicate his name to the appointing authority, who shall thereupon appoint the said person as sole arbitrator. This clause further provides that if the seller fails to communicate such selection as noted above within the period specified, the appointing authority shall make the selection and appoint the selected person as the sole arbitrator. An overall look of the aforesaid provision of the arbitration clause makes it clear that the appointing authority for appointment of an arbitrator under the arbitration clause is the chief managing director of the respondent, who shall send a notice to the petitioner within 30 days of receipt of a panel of 3 names. It is not in dispute that the said notice was duly served on the petitioner, but in spite of such service of notice, the petitioner had failed to appoint or select any one of the persons named in the panel of 3 persons from the list sent by the respondent within the time specified therein. Since the arbitration clause clearly provides for selection of one of the persons named in the panel to be appointed as the sole arbitrator by the respondents, it was open for the respondent to select one person from the panel and appoint as the sole arbitrator. In this case, admittedly the respondent has already appointed and selected a retired judge of the Delhi High Court as the sole arbitrator. After such appointment having been made, the petitioner has filed this application saying that since the former Chief Justice of India was appointed as the sole arbitrator, it would not be possible for the petitioner to accept a retired judge of the Delhi High Court for being appointed as the sole arbitrator. As noted herein above, it is not in dispute that a panel of 3 अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए
और जहाँ-जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक-ठाक से आप लोग नहीं बना पाए, तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो-जो ठीक-ठाक लिखे, उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो-जो आप लोगों ने गोल-गोल किया है, तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे, तब अगर उस एक डिक्टेशन खराब आया है, तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएँगे, तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए पूरा। ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो-जो गलत हुआ, उसका अभी इंग्लिश में जो-जो गलत हुआ, क्या-क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या-क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या-क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए, तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो-जो मिस्टेक हुआ, जो-जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए। फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जॉइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM टू 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स्ड डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं और आउटलाइन्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ही आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फ़ोर्स नहीं है, आपका हिसाब, आपका मर्ज़ी से आप कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है। यही हम लोगों का सबका मोटिव है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।